Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the next subsection, which is about elements of nervous system. And you've seen here we have got the big picture of the elements of nervous system here. Basically nervous system में तीन major elements होते हैं. Number one, the receptors, जो कि sense organs के साथ associated होते हैं. Number two, we have got the neurons. You've got the neurons जो कि in turn तीन तरह के होते हैं. The sensory neurons which carry message from the receptors to the central nervous system, and the interneurons which are present in the central nervous system. And then we have got the motor neurons which carry message from central nervous system to the effectors, which are muscles and the glands most of times. So हम कह सकते हैं कि basically nervous system के three basic elements हैं. The receptors in the sense organs, then we have got the neurons जो कि तीन तरह के हैं, sensory, inter and motor, and then we have got the effectors which are mostly muscles and the glands. इस सबसेक्शन में हम इन्हीं तीनों एलिमेंट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, यानी कि रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट बिग पिक्चर ऑफ दिस सबसेक्शन. In this subsection, first of all, we'll talk in detail about receptors. Secondly, I will generate certain high yield points regarding neurons as far as your entrance test is concerned. Thirdly, I will generate few points regarding the effectors. And last of all, we will discuss reflex arc as well, which is a type of involuntary action you see in here. So I have a question for you at this stage. Which of the following entity can act as receptor for stimuli? A option is cells, B option is neurons, C option is organs, D option is all of these. So which of the following entity can act as receptors for stimuli? And the best response to this question is all of these. Cells, neurons, organs, ये सभी receptors का काम कर सकते हैं. Best response is delta. And now let's start off our discussion with receptors. So सबसे पहले introduction हम देखते हैं receptors का. So cells, neuron endings or organs which detect changes in the external and internal environment of body. So cells हो या simply neurons की endings हो या even organs हो जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी में चेंजेस को डिटेक्ट कर सकें, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं. वो फिर कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इन आवर बॉडी विजन के रिसेप्टर्स हैं, हेयरिंग के, स्मेल के, टेस्ट के, टच वगैरह के रिसेप्टर्स हैं, एंड सो ऑन. इनको हम आगे चल के अभी डिटेल से डिस्कस भी करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस. द रिसेप्टर्स फॉर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज. Receptors for blood, carbon dioxide and oxygen are called as. A option is nociceptors, B option is electromagnetic receptors, C option is mechanoreceptors, and D option is chemoreceptors. And the best response to this question is chemoreceptors. So वो रिसेप्टर्स जो कि ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिटेक्ट करेंगे, वो कीमोरिसेप्टर्स की एग्जांपल्स हैं. I have got few questions for you at this stage, and first of all I would like to present you different options. A option is nociceptors, B option is electromagnetic receptors, C option is mechanoreceptors, and D option is chemoreceptors. And the first statement is the receptors for carbon dioxide and oxygen in blood are called as. So basically जो receptors हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए हमारे जो ब्लड में खासतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं कि वो कौन से रिसेप्टर्स हैं. दे आर एक्चुअली examples of the chemoreceptors. Best response would be delta. Another statement, the receptors for hearing and equilibrium are called as. तो hearing और equilibrium के लिए जो receptors हैं basically वो mechanoreceptors हैं. And then another statement, the rods and cones in eyes are examples of. तो basically ये electromagnetic receptors के examples हैं. So इन questions की जो reasoning है इसको हम आगे चल के एक table में discuss करते हैं. So we have got this table
ये टेबल बेसिकली क्या कर रहा है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ स्टिमुलाई ये सम अप कर रहा है. सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल. इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट रेस्पेक्टिव रिसेप्टर्स, इन द सेकंड कॉलम वी हैव गॉट द स्टिमुलाई फॉर दोज रिसेप्टर्स, एंड इन द एक्सट्रीम राइट कॉलम वी हैव गॉट द एग्जांपल्स. So first of all we have got the chemoreceptors. अब chemoreceptors जो हैं इनके लिए स्टिमुलाई कौन कौन से हैं, लाइक स्मेल, टेस्ट, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. सो ब्लड में अगर इन एंटिटीज में से भी कोई सी भी एंटिटी प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट जो रिसेप्टर्स करेंगे वो कीमो रिसेप्टर्स करेंगे. तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं द रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस. एंड देन वी हैव गॉट द मैकेनोरिसेप्टर्स. मैकेनोरिसेप्टर्स के आगे फर्दर ये किन किन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, यू हैव गॉट द टच, प्रेशर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम. टच, प्रेशर, हियरिंग और इक्विलिब्रियम दे आर स्टिमुलाई फॉर द मैकेनोरिसेप्टर्स. अब मैकेनोरिसेप्टर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, जो फ्री नर्व एंडिंग्स एंड द एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स एंड द स्ट्रे एंडिंग्स, ये सारी की सारी मैकेनोरिसेप्टर्स की एग्जांपल्स हैं. एंड then we have got the photoreceptors or the electromagnetic receptors. Photoreceptors और electromagnetic receptors they are actually one and the same thing. तो इनके लिए stimulus क्या है, light is the stimulus for the photoreceptors और the electromagnetic receptors. और इसकी जो examples हैं photoreceptors या electromagnetic receptors के लिए they are rods and the cones in the eyes. तो eyes में जो rods होते हैं they are for the black and white vision, they are for the black and white vision, जबकि जो कोन्स होते हैं in the eyes they are for the color vision, they are for the color vision. All right, and then we have got the thermoreceptors. So thermoreceptors के लिए जो स्टिमुलाई है they are actually cold and the warmth. तो ये cold और warmth दोनों को डिटेक्ट करते हैं और इसकी जो एग्जांपल्स हैं they are free nerve endings. And last पे we have got the nociceptors. तो nociceptors के लिए जो स्टिमुलस है that is pain and इसकी जो एग्जांपल्स हैं they are actually undifferentiated endings which are given in the textbook. ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनकी डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इन एग्जांपल्स को इन रिसेप्टर्स के लिए मेमोराइज कर लें. दैट वुड बी इनफ फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन योर फाइनल एंट्रेंस एग्जाम. सो जो क्वेश्चन फॉर्मेट है इस पर्टिकुलर टेबल से वो अब क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपसे पहले क्वेश्चंस कुछ पूछे भी थे, इसमें आपको रिसेप्टर्स देके वो उसके स्टिमुलाई पूछ सकते हैं या रिसेप्टर्स देके उसकी एग्जांपल्स पूछ सकते हैं. सिमिलरली एग्जांपल्स देके आपसे वो उसके रिसेप्टर्स पूछ सकते हैं या एग्जांपल से स्टिमुलाई पूछ सकते हैं. सो कंक्लूसिवली कोई एक एंटिटी देके बाकी दोनों में से कोई भी एंटिटी वो टेस्ट कर सकते हैं. तो ये इस टेबल में से क्वेश्चन की बायस है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप इस टेबल को प्रिपेयर करेंगे. एंड दैट्स ऑल अबाउट द रिसेप्टर्स. एंड नाउ वी हैव गॉट द न्यूरॉन्स. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द न्यूरॉन्स. सो न्यूरॉन्स इनके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं. बेसिकली न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं एंड दे कैन नॉट डिवाइड आफ्टर मैचुरेशन. कि मैचुरेशन के बाद ये डिवाइड नहीं कर सकते. एंड न्यूरोग्लाया क्या है, बेसिकली न्यूरोग्लाया डिफरेंट फ्रॉम द न्यूरॉन्स. ये नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं और ये वो नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं. तो इनका रोल क्या होता है, एक्चुअली जो नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं बाय द वे दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट. एंड इनका काम क्या है, दे प्ले रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ द न्यूरॉन्स एंड इसके अलावा दे ऑल्सो प्ले रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स बाय द माइलिन शीथ. कि जो नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं ये माइलिनेशन कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स की एंड दैट्स हाउ दे आर प्लेइंग रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स. और जो माइलिनेशन है न्यूरॉन्स की वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जनरली श्वान सेल्स करते हैं, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल्स होते हैं वो माइलिनेशन करते हैं. बहरहाल श्वान सेल्स हो या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो ये एग्जांपल्स हैं किसकी, न्यूरोग्लाया की, विच इन टर्न आर द नॉन न्यूरोनल सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. लेकिन नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स है वो न्यूरॉन्स ही रहेंगे. सो I have got a question for you at this stage
In case of neurons, many granules are present in A option is soma, B option is axon, C option is dendrite and D option is soma and the dendrite. Straight book की line है and the best response to this question is soma and the dendrite. And then we have got another question. Axons and dendrons are dash processes: protoplasmic, cell membrane, cytoplasmic और protoplasmic और cytoplasmic processes. तो basically यू सीन हियर कि जो एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स हैं ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं और साइटोप्लाज्म भी प्रोटोप्लाज्म ही का पार्ट है, तो इसीलिए हम इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो डेल्टा को पिक करेंगे, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक और द साइटोप्लाज्मिक. एंड यू सीन हियर कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है बेसिकली प्रोटोप्लाज्म ये बनता है किससे, ये बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म से. सो अगर हमारे पास से ये सेल है और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो एनक्लोज है ये साइटोप्लाज्म है. सो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म collectively they are constituting the protoplasm. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है क्या ये भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, एंड द आंसर इज यस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये भी प्रोटोप्लाज्म ही का हिस्सा है. सो बाय डेफिनेशन प्रोटोप्लाज्म से मुराद क्या होती है, लिविंग मैटर ऑफ अ सेल. एनीवेज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी डेल्टा. अनदर क्वेश्चन, मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन्स which is concerned with the biosynthesis of materials necessary for the growth and maintenance of neuron is, right? So जो main nutritional part है सारे न्यूरॉन्स का, जहाँ पे मेजर सिंथेसिस हो रही होनी है जिस पार्ट ने सारे के सारे न्यूरॉन को मेंटेन करना है, वो निसल्स हैं या वो न्यूरोग्लाय हैं या शॉन सेल्स हैं या सोमा ऑफ द न्यूरॉन है. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज सोमा, जिसको हम सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स भी कहते हैं. सो जो किसी भी न्यूरॉन का जो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट होगा दैट वुड बी द सेल बॉडी और द सोमा. डेल्टा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. एंड अनदर क्वेश्चन, इन नर्व सेल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, सोमा, एक्सोप्लाज्म और ऑल ऑफ दीज. एंड यू सीन हियर सोमा बेसिकली क्या है, सोमा से मुराद है सेल बॉडी, राइट. सो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर ऑफ कोर्स क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूरोनल साइटोप्लाज्म ही को हम एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं. सो टेक्निकली स्पीकिंग जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल बॉडी में प्रेजेंट है. सो बाय डिफॉल्ट वो साइटोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होगा. तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी डेल्टा. डोंट जॉइन एनी ट्रेडिशनल एकेडमी. नेशनल एमडीकैट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें. अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे. और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एमडीकैट. और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे. So now let's have a look at the structure of a typical neuron. एक typical neuron में सबसे जो major main nutritional part होता है that is the cell body. So here you can see the cell body of the neuron जिसको हम soma भी कहते हैं. Soma and the cell body this is one and the same thing. So एक major part neuron का ये होता है. And secondly we have got the neuronal processes जो कि दो तरह के होते हैं. एक वो प्रोसेसेस जो कि मैसेज को लेके आते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडीज, जैसे ये जो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं ये मैसेज को लेके आएंगे टुवर्ड्स द सोमा और सेल बॉडी. इन प्रोसेसेस को हम क्या नाम देते हैं, दीज आर बेसिकली द डेंड्राइट्स. ये जो प्रोसेसेस हैं विच कैरी मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी ये डेंड्राइट्स हैं. जबकि वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस और प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो कि
मैसेज लेके जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर दी एक्सॉन्स। अब यहां पे अब ये कह सकते हैं कि एक जो न्यूरॉन है, एक टिपिकल न्यूरॉन, बेसिकली ये एक सेल बॉडी और इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस से बना होता है। वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो कि सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आएगा, वो उसको हम डेंड्रॉन कहेंगे, जबकि वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस और प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो मैसेज को सेल बॉडी से अवे लेके जाएगा, उसको हम एक्सॉन कहेंगे। जबकि सोमा इसका मेजर न्यूट्रिशनल पार्ट है या मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है, जहां पे सारी की सारी सिंथेसिस होनी है और पूरे न्यूरॉन ने इसी की एक्टिविटीज की मदद से मेंटेन होना है। और यहां पे ये बात भी बताना चाहूंगा, क्योंकि सोमा मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है, अगर सेल बॉडी किसी न्यूरॉन की डैमेज हो जाएगी, फिर वो जो न्यूरॉन है अल्टीमेटली कह रहे हैं कि रिकवर नहीं हो सकेगा। हाँ, अगर न्यूरोनल प्रोसेसेस डैमेज हो जाते हैं तो फिर लिमिटेड रिपेयर जो है वो पॉसिबल होता है न्यूरॉन्स का, बट वंस द सेल बॉडी इज गॉन फॉर गुड। ऑलराइट, अब यहां पे सेल बॉडी को लेके कुछ मैं जनरल पॉइंट्स जनरेट करना चाहूंगा। यू सीन हियर, व्हेन यू थिंक ऑफ द सेल बॉडी, when you think of the cell body of the neuron, I want you to think of a structure of a typical eukaryotic cell. So ये जो न्यूरॉन है, ये इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के जैसा ही है। सिर्फ और सिर्फ जो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर है न्यूरॉन का, वो न्यूरोनल प्रोसेसेस हैं या जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, राइट, दैट इज डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन्स। अदरवाइज जो स्ट्रक्चर है इसका न्यूरॉन्स का, वो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के साथ कंपेरेबल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि वी वर हैविंग द न्यूक्लियस एंड वी वर हैविंग द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर फिर हमारे पास न्यूक्लियोलस भी था, फिर साइटोप्लाज्म में वी वर हैविंग द डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस, राइट, जैसे यू सीन है उसके अंदर वी वर हैविंग द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, और उसके बाद फिर वी वर हैविंग द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एटसेट्रा, राइट, एंड इवन वी वर हैविंग द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिस जैसे कि राइबोसोम्स वगैरह। सो वो सारी की सारी चीजें इसके सेल बॉडी के अंदर होंगी। सो अब ये कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है सेल बॉडी का, दिस इज कंपेरेबल विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। सो बॉटम लाइन पॉइंट मेरी डिस्कशन का यही है कि न्यूरॉन भी एक यूकैरियोटिक सेल के जैसा एक सेल है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके पास स्पेशल न्यूरोनल प्रोसेसेस हैं और जिनके अलोंग मैसेज कैरी किया जाता है। और यहाँ पे कुछ और भी हाई यील्ड पॉइंट्स में जनरेट करना चाहूंगा कि यू सीन हियर कि जो न्यूरोनल प्रोसेसेस हैं, न्यूरोनल प्रोसेसेस, इनकी बेसिकली कह लें कि इनकी माइलिनेशन कैरी आउट की जाती है, राइट। सो कुछ सेल्स हैं जो कि न्यूरोनल प्रोसेसेस पे रैप्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस न्यूरॉन को देखें, इसके एक्सॉन को देखें, तो इसका जो एक्सॉन है ये डिफरेंट श्वान सेल से रैप्ड है। लाइक हियर जहां पे हमारे पास ये एक श्वान सेल है और दूसरा श्वान सेल है, राइट, another Schwann cell, here we got another Schwann cell. So बहुत सारे Schwann cells एक ही एक्सॉन को माइलिनेट कर रहे हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो बेसिकली फर्ज करें कि अगर हमारे पास सेंटर में ये एक्सॉन है जो कि न्यूरोनल प्रोसेस है, तो जो श्वान सेल है, श्वान सेल इसको रैप कर रहा होता है, राइट, और इस सेल के साथ एसोसिएटेड एक न्यूक्लियस भी होगा। सो हमने इसका ये क्रॉस सेक्शन देखा है। अब जस्ट इमेजिन करें कि अगर इसको समझेंगे, इसको अस्यूम करें कि ये न्यूरोनल प्रोसेस है और उसके ऊपर श्वान सेल भी है। इसको अगर मैं कट करूंगा, कट करके अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको सेंटर में न्यूरोनल प्रोसेस मिलेगा, राइट, यू हैव गॉट द न्यूरोनल प्रोसेस, और उसके ऊपर रैप्ड होगा श्वान सेल। और बहुत सारे श्वान सेल्स एक ही न्यूरोनल फाइबर को माइलिनेट कर रहे होते हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो माइलिनेशन का काम है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रहे होते हैं, और एक ही ओलिगोडेंड्रोसाइट बहुत सारे न्यूरोनल प्रोसेसेस की माइलिनेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन वो एग्जाम के लिए हाई यील्ड फैक्ट नहीं है। सो यहां पे आप याद रखिएगा कि जो माइलिनेशन का काम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली किसने करना है, वो श्वान सेल्स ने करना है। इवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी श्वान सेल्स दे कैन प्ले रोल इन द माइलिनेशन एट सर्टेन प्लेसेस। और इसमें आप देखें कि वो पॉइंट्स न्यूरोनल फाइबर पे वो पॉइंट्स जहां पे श्वान सेल प्रेजेंट नहीं है, राइट, हम कहते हैं ये नोड्स ऑफ रैनवियर हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो श्वान सेल है ये दो नोड्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। सो ये नोड्स ऑफ रैनवियर है, और नोड्स ऑफ रैनवियर के बारे में अब याद रखिएगा कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे सोडियम चैनल्स की जो कंसंट्रेशन है, सोडियम चैनल्स
की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस नंबर में सोडियम चैनल्स की नोड्स पे प्रेजेंस की वजह से समहाउ इट प्लेज रोल इन द सॉल्टेटरी कंडक्शन या जंपिंग कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, जिसको हम आगे चल के इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे, राइट। एंड हियर वी हैव गॉट द एक्सॉन टर्मिनल। अब हम इसके लेबल्स पे वन बाय वन फोकस करते हैं। जो सीन है, हमने हमारे पास सेल बॉडी है, लाइक दिस इज अ सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर वी हैव गॉट द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोलस, वी हैव गॉट द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोलस देयर, एंड देन वी हैव गॉट द डेंड्राइट जो कि न्यूरॉनल प्रोसेस है, मैसेज कैरी कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी। देन वी हैव गॉट द एक्सॉन जो कि मैसेज कैरी कर रहा है न्यूरॉनल प्रोसेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। माइलिन शीथ, ये आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे श्वान सेल्स माइलिनेट कर रहे हैं, और श्वान सेल्स के दरमियान में वी आर हैविंग दीज नोड्स ऑफ रैनमेयर, लाइक यहाँ पे यू कैन सी द नोड्स ऑफ रैनमेयर, और लाइक यू कैन सी दीज श्वान सेल्स रैपिंग द न्यूरोनल फाइबर और द एक्सॉन एट सेवरल प्लेसेस, और यहाँ पे आपको ये एक्सॉन का टर्मिनल भी नजर आ रहा है। सो ये स्ट्रक्चर है एक टिपिकल न्यूरॉन का, राइट। सो इसमें अब ये भी जरा गौर करें कि इसमें बेसिकली जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सोमा और डेंड्राइट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो डिफरेंट ग्रेन्यूल्स हैविंग स्टोरेज सब्सटेंसेस वो सोमा और डेंड्राइट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और इसके अलावा जो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है वो भी याद रखिएगा कि जो न्यूरॉन का मेन न्यूट्रिशनल पार्ट, दिस इज द soma or the cell body. So this is basic structure of a typical neuron. And at this stage I would like to ask few questions from you, and first of all I would like to present you the options. A option is motor neurons, B option is sensory neurons, C option is associated neurons, and D option is internal neurons. And से हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है? पहली स्टेटमेंट, शॉर्ट डेंड्रॉन एंड लॉन्ग एक्सॉन इज फीचर ऑफ। अब शॉर्ट डेंड्रॉन है और एक्सॉन लॉन्ग है, तो बेसिकली ये किसका फीचर है? ये मोटर न्यूरॉन्स का फीचर है। अभी हम आगे चल के एक ट्रेसिंग को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, एक ग्राफिकल फोटोग्राफ को डिस्कस करेंगे, और वहां पे हम इस क्वेश्चन की रीजनिंग को डिटेल से देखेंगे। अनदर स्टेटमेंट, विच न्यूरॉन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इफरेंट न्यूरॉन। तो हम किस न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं? तो ये मोटर न्यूरॉन को हम बेसिकली इफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं। अनदर स्टेटमेंट, लॉन्ग डेंड्रॉन्स ऑफ विच न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड विद रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स के साथ जो डेंड्रॉन्स जुड़े होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स के जुड़े होते हैं। बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी बीटा टू दिस क्वेश्चन। अनदर स्टेटमेंट, विच न्यूरॉन हैव मोस्ट ऑफ देयर पोर्शन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली जो मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं इनकी सेल बॉडीज और मोस्ट ऑफ देयर पार्ट्स वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होते हैं, जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इनकी सेल बॉडी भी मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होती है, और इनका डेंड्रॉन, लॉन्ग डेंड्रॉन, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होता है। सो जनरली ये बात हम सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देयर पार्ट दैट इज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट गिवन वुड बी बीटा। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर, उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। सो हियर वी हैव गॉट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ है ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी हाई यील्ड फोटोग्राफ है। सो जो भी
कॉमनली टेस्टेड फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, उन सबको मैंने इस ग्राफिकल फोटोग्राफ में सम अप किया है. लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ. यू सीन हियर कि वी हैव गॉट द स्टिमुलस हियर, राइट. स्टिमुलस क्या है? एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और द इंटरनल एनवायरनमेंट. जो स्टिमुलस है इसको डिटेक्ट करना होता है किसने? इसको रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करना होता है, जो कि सेंस ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं. एंड रिसेप्टर्स देन दे आर लिंक्ड विद द डेंड्रॉन्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स, राइट. सो सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ एसोसिएटेड है. सो जो भी मैसेज अल्टीमेटली स्टिमुलस जो है उसको डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर. रिसेप्टर ने करना क्या है? रिसेप्टर ने स्टिमुलस को बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है. सो अल्टीमेटली कह लें कि जो सेंसरी न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन है इसके अलोंग एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर. सो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये ट्रेवल करेगा और ये जाएगा ऑल द वे टू द सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, जो कि कहां पे पड़ी होगी? इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया. डॉर्सल रूट गैंग्लिया में पड़ी होगी. और अल्टीमेटली अब कह लें कि फिर जो मैसेज है वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो सेल बॉडी से जाएगा इसके एक्सॉन के अलोंग, जो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन के अलोंग टू द इंटर न्यूरॉन, राइट. सो और जो सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान जो कम्युनिकेशन है बेसिकली ये हो रही होती है वाया अ सिनेप्स. सो सिनेप्स क्या है? दिस इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स. सिनेप्स की जो डिटेल है वो हम एक सेपरेट सबसेक्शन में डिस्कस करेंगे. यहां पे हमारी डिस्कशन के स्कोप से वो बियॉन्ड है. एनीवेज, सो अब देखें कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्रॉन के अलोंग और फिर सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन के लॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो अल्टीमेटली केमिकल ट्रांसमिशन के जरिए वो शिफ्ट हो गया टू एन एसोसिएटिव न्यूरॉन, जिसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं. सो एसोसिएटिव न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन दिस इज वन एंड द सेम थिंग. अब देखें कि इंटर न्यूरॉन के डेंड्रॉन के लॉन्ग मैसेज इसकी सेल बॉडी तक गया और उसके बाद फिर इंटर न्यूरॉन की सेल बॉडी से इसके एक्सॉन के लॉन्ग जो मैसेज है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो गया टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन्स. सो मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान में भी एक सिनेप्स आप देख सकते हैं. तो ये जो सिनेप्स है ये है बिटवीन द एक्सॉन ऑफ द एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड बिटवीन द डेंड्रॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन. एनीवेज, यहां पे भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स केमिकल ट्रांसमिशन के जरिए वो ट्रांसमिट होगा टू द डेंड्रॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन और वहां से जो अल्टीमेटली कह लें कि जो मैसेज है उसको कैरी किया जाएगा टुवर्ड्स द इफेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ यू सीन हियर एन एक्सॉन, राइट. और अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल के जरिए या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए आप कह लें कि मैसेज भेजा जाएगा टू द इफेक्टर्स जो कि मोस्टली मसल्स और ग्लैंड्स हैं और उसके नतीजे में वी विल अल्टीमेटली गेट द रिस्पॉन्स. सो इसमें अब यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन देखी है बेसिकली कि तीन तरह के जो न्यूरॉन्स हैं वो इसमें कह लें कि इन्वॉल्व होते हैं नर्वस सिस्टम में या नर्वस कोऑर्डिनेशन में. एक वी हैव गॉट द सेंसरी न्यूरॉन्स, राइट. सो वी हैव गॉट द सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को लेके जाना. सेकेंडली वी हैव गॉट द एसोसिएटिव न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ही मैसेज को कैरी कराना. सो टेक्निकली स्पीकिंग इन्होंने सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज है वो उसको एनालाइज करके अल्टीमेटली रिस्पेक्टिव मोटर न्यूरॉन्स को भेजना होता है ताकि वो टारगेटेड इफेक्टर्स को स्टिमुलेट करके जो रिस्पॉन्स चाहिए हमें वो ले सकें. एनीवेज, और उसके बाद भी थर्ड नंबर पे हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो मोटर न्यूरॉन्स हैं और मोटर न्यूरॉन्स एक्चुअली दे कैरी मैसेज फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर्स. अब यहां से एग्जाम डिफरेंट वेज में क्वेश्चंस पूछ सकता है, राइट. तो इससे पहले कि हम उन क्वेश्चंस पे फोकस करें मैं एक दो और हाई यील्ड पॉइंट्स को यहां पे बताना चाहूंगा कि बेसिकली आप जस्ट देखेंगे जो ये वाला एरिया है, राइट, जो ये वाला एरिया है बेसिकली आप अस्यूम करें कि ये सीएनएस को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. तो आप देख सकते हैं कि जो सेल बॉडीज हैं, सेल बॉडीज इंटर न्यूरॉन्स की या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की एंड मोटर न्यूरॉन्स की दे लाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि जो सेल बॉडी है जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज दे लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दे लाई इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, राइट. सो ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया में आपको सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिलेंगी.
चलें, अब हम ओवरऑल फोकस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले एग्जाम आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रिसेप्टर्स हैं वो किन न्यूरॉन्स के साथ लिंक्ड हैं, एंड यू कैन सीन हियर कि रिसेप्टर्स किसके साथ लिंक्ड हैं, विद द सेंसरी न्यूरॉन्स। सिमिलरली एग्जाम अगर आपसे पूछता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मेन न्यूरॉन्स कौन से प्रेजेंट हैं, आंसर इज एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। और अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इफेक्टर्स किन न्यूरॉन्स से लिंक्ड हैं, तो यू सीन हियर इफेक्टर्स आर लिंक्ड विद द मोटर न्यूरॉन्स, राइट। इसी तरह से एग्जाम आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि लॉन्ग डेंड्रॉन इज फीचर ऑफ, तो हमने देखा कि लॉन्ग डेंड्रॉन किसका फीचर है, सेंसरी न्यूरॉन्स का, राइट। और हमें पता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है वो डॉर्सल रूट गैंग्लिया में पड़ी हुई है, जो कि नियर सीएनएस है ऑफ कोर्स, राइट। सो लॉन्ग डेंड्रॉन इज फीचर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, और इनका जो एक्सॉन होगा दैट वुड बी शॉर्टर, जो सेंसरी न्यूरॉन्स का एक्सॉन होगा वो शॉर्ट होगा। सो अगर एग्जाम आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि लॉन्ग डेंड्रॉन एंड शॉर्ट एक्सॉन इज फीचर ऑफ, अगेन योर बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी सेंसरी न्यूरॉन्स। एंड उसके बाद इफ एग्जाम आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट शॉर्ट डेंड्रॉन एंड लॉन्ग एक्सॉन कैरेक्टराइज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स, सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी मोटर न्यूरॉन्स। और इसी तरह से कौन सा न्यूरॉन ऐसा है जो कि इफेक्टर से जुड़ा है, या कौन सी टाइप्स के न्यूरॉन्स इफेक्टर से जुड़े हैं, तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द मोटर न्यूरॉन्स जो कि इफेक्टर से जुड़े हैं, राइट। और सो ये आप कह लें कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मेट्स हैं जो कि स्ट्रेसिंग से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पैराडॉक्सिकल जो फैक्ट है वो सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज की लोकेशन है, राइट। सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज की लोकेशन है। और यहां पे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज की कलेक्शन होती है, ओवर देयर व्हाट वी गेट द ग्रे मैटर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है इट वुड गिव अस द ग्रे मैटर, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब भी कभी सेल बॉडीज की कलेक्शन होगी, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडीज की कलेक्शन है इट गिव्स अस द गैंग्लिया। इसको हम फर्दर आगे चल के नेक्स्ट सब सेक्शंस के अंदर भी जब खास तौर पे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे वहां पे इनफैक्ट हम रिवाइज भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक क्रॉस लिंक है जो कि मैंने आपको दे दिया है रिगार्डिंग द ग्रे मैटर एंड द गैंग्लिया। बेसिकली दोनों में सेल बॉडीज हैं, जस्ट लोकेशन का फर्क है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ग्रे मैटर एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज की जो कलेक्शन है इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द गैंग्लिया। सो अब इसी ट्रेसिंग को लेके कुछ इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस हैं, उनको मैं यहां पे सम अप कर रहा हूं ताकि आप इस ट्रेसिंग को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। सो यू सीन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जनरलाइजेशन क्या है हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड सीएनएस। सो अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि कौन से न्यूरॉन्स मैसेज को सीएनएस की तरफ लेके जाएंगे, आंसर क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स। एंड मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सीएनएस। So sensory neurons they carry message towards CNS, जबकि motor neurons carry message away from CNS. And then the associative neurons और interneurons जिनको हम relay neurons के नाम से भी जानते हैं, they are present in the CNS. So ये central nervous system के अंदर present है। मैं जो जितने भी अगर कोई भी एंटिटी डिस्कस करता हूं मेरी कोशिश ये होती है कि उसके अगर मल्टीपल नेम्स हैं तो मल्टीपल नेम्स को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, क्योंकि एग्जाम में इन नेम्स में से कोई भी अपीयर हो सकता है। यू शुड बी नोइंग द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एंटिटीज। सो हमें पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन एंड द रिले न्यूरॉन दे आर ऑल एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग। They are present in the CNS and they are involved in the processing of information. So exam अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि CNS में मेनली कौन से न्यूरॉन्स हैं या कौन से न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। सो इसके बाद फिर एक और जनरलाइजेशन है, ऑल न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड द न्यूरॉनल प्रोसेसेस। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जितने भी तीनों काइंड्स के न्यूरॉन्स हैं सब के अंदर सेल बॉडी है और न्यूरॉनल प्रोसेसेस है। हाँ, जो सेल बॉडीज हैं ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स दे लाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ज्यादातर जो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी के लाइक उनकी जो सेल बॉडीज हैं दे आर लाइंग इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेजर एक्सेप्शन टू द रूल इज द सेंसरी न्यूरॉन्स, मोस्टली जिनकी सेल बॉडीज कहां पे पड़ी होती हैं, दे आर लाइंग इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। दिस इज 5 स्टार फैक्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डॉर्सल रूट के गैंग्लिया के अंदर इनकी सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज पड़ी होती हैं। And then another generalization, sensory neurons have got long dendron.
सो सेंसरी न्यूरॉन्स का डेंड्रॉन की लेंथ ज्यादा होगी, while मोटर न्यूरॉन्स हैव गॉट लॉन्ग एक्सॉन। सो मोटर न्यूरॉन्स का जो कह लें कि मोटर न्यूरॉन्स दे हैव गॉट लॉन्ग एक्सॉन। सो सेंसरी न्यूरॉन्स के लॉन्ग डेंड्रॉन होगा और मोटर न्यूरॉन्स का लॉन्ग एक्सॉन होगा, जबकि जो इंटर न्यूरॉन्स हैं या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं उनके डेंड्रॉन और एक्सॉन दोनों की जो लेंथ है वो सिग्निफिकेंट होती है। हम उनके बारे में कोई जनरलाइजेशन नहीं दे सकते कि वेरी शॉर्ट है या वेरी लॉन्ग है। ऑलराइट, और यहाँ पे कई दफ़ा एक और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कि सिनेप्सिस किस और किस के दरमियान में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव न्यूरॉन के ओवरऑल एसोसिएटिव न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान जो सिनेप्स है वो बेसिकली किन और किन फाइबर्स के दरमियान में। तो यू सीन हियर सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन और इंटर न्यूरॉन के डेंड्रॉन के दरमियान सिनेप्स है, और इसी तरीके से इंटर न्यूरॉन के एक्सॉन और मोटर न्यूरॉन के डेंड्रॉन के दरमियान में सिनेप्स है। सो आप डिफरेंट न्यूरॉन्स के फाइबर्स को भी याद रखिएगा कि सिनेप्सिस की फॉर्मेशन में इनके कौन कौन से न्यूरॉनल फाइबर्स स्पेसिफिकली इन्वॉल्व हैं। दिस इज ऑल्सो हाई यील्ड फैक्ट फॉर योर एग्जाम। एंड नाउ वी हैव गॉट दिस फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीन मेन टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। लाइक वी हैव गॉट द सेंसरी न्यूरॉन्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इनकी जो सेल बॉडी है ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर पड़ी हुई है। एंड देन वी हैव गॉट द रिले न्यूरॉन्स और इंटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, ये सीएनएस की हद तक ही जस्ट मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, दे नेवर कम आउट ऑफ द सीएनएस। या ये भी कह सकते हैं कि रिले न्यूरॉन ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान रिले का काम करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। एंड देन वी हैव गॉट द मोटर न्यूरॉन्स, एंड मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेके इफेक्टर्स की तरफ जाना। और सेंसरी न्यूरॉन्स का जो डेंड्रॉन है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, जबकि मोटर न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन होगा उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स। सो अभी तक हमने रिसेप्टर्स को इन डिटेल डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने जो न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं हमने उनको इन डेप्थ डिस्कस किया, और उनसे रिलेटेड हमने एग्जाम की क्वेश्चन बायस को भी देखा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द इफेक्टर्स। अब जो इफेक्टर्स है, लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इफेक्टर्स, राइट। सो स्ट्रक्चर्स विच रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर स्टिम्युलेटेड बाय इंपल्स कमिंग वाया मोटर न्यूरॉन्स। Structures which respond when they are stimulated by impulse coming via the motor neurons. So वो structures जो कि कब रिस्पॉन्ड करेंगे, जब उन तक मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इंपल्स आती है। हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इफेक्टर्स हैं। एंड प्रिंसिपल इफेक्टर्स हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं, वी हैव गॉट द ग्लैंड्स एंड वी हैव गॉट द मसल्स। ग्लैंड्स बेसिकली रिस्पॉन्ड बाय सिक्रीटिंग एंड मसल्स रिस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। सो ये प्रिंसिपल और मेजर इफेक्टर्स हैं हमारी बॉडी के। एंड लास्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली पाथवे है। असल में ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि एक तरह का इनवॉलंटरी एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, राइट। सो यू सीन हियर कि इन रिफ्लेक्स आर्क डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज। अब रिफ्लेक्स आर्क में जो स्टिमुलस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेंसरी न्यूरॉन टू रिले सेंडर टू इफेक्टर्स, या मोटर न्यूरॉन टू एसोसिएटिव न्यूरॉन्स टू इफेक्टर्स, या रिसेप्टर्स टू मोटर न्यूरॉन्स टू इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, या इफेक्टर्स टू सेंसरी न्यूरॉन्स टू रिसेप्टर्स। सो यू सीन हियर कि इसमें सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज है वो रिले सेंटर में जाएगा या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स तक जाएगा, वहां से अल्टीमेटली मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वो इफेक्टर्स तक आएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ये पॉसिबल है कि मोटर न्यूरॉन्स से एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, नो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स उल्टा मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन्स को देते हैं, उनसे मैसेज लेते नहीं है। सो ये रॉन्ग सीक्वेंस है। रिसेप्टर्स एंड दे आर लिंक्ड विद द मोटर न्यूरॉन्स, ऑफ कोर्स रिसेप्टर्स दे आर नेवर लिंक्ड विद मोटर न्यूरॉन्स, ये भी स्टेट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। एंड इफेक्टर्स आर लिंक्ड विद द सेंसरी न्यूरॉन्स, नो, कभी भी हम नहीं देखेंगे कि इफेक्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ जुड़े हों। सो ये भी रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा. So if you would have a look at the reflex section, the reflex arc, so what happens in a reflex section, हम एक एग्जांपल की मदद से इसको देखते हैं. जस्ट इमेजिन करें कि अगर गॉड फॉरबिड कभी आप अगर कपड़े प्रेस कर रहे हैं और आपका जो हाथ है वो अनफॉर्चुनेटली अगर वो आयरन के साथ टच हो गया है, तो अब जैसे ही हाथ टच होगा स्ट्रेट अवे यू वुड पुल इट बैक,
राइट, और बेबी इवन जो जलन का एहसास है वो आपको थोड़ी देर के बाद हो, लेकिन राइट अवे प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आपका आ जाता है जो कि आपको फर्दर डैमेज से बचाता है, राइट। ये जो एक्शन है बेसिकली ये क्या है, दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जो कि रिफ्लेक्सली या ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी तरह से अगर आप चले जा रहे हैं और आपका फर्ज करें कि पांव किसी कील के ऊपर आ गया है, तो फौरी तौर पे आप अपनी जो लेग है उसको पुल कर लेंगे ताकि वो जो नेल है वो आपको बहुत ज्यादा डैमेज ना करे। सो अगेन ये भी रिफ्लेक्स एक्शन ही की एक एग्जांपल है। अब इसमें हम देखें कि फर्ज करें कि अगर आपका हाथ जो है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है, राइट, सो उसको बेसिकली जो पेन के रिसेप्टर्स हैं जो कि हैंड में प्रेजेंट हैं, वो नोसिसेप्टर्स वो उसको डिटेक्ट करेंगे, एंड पेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो जुड़े होंगे किसके साथ, विद द सेंसरी न्यूरॉन। सो सेंसरी न्यूरॉन के अलॉन्ग जो मैसेज है वो भेजा जाएगा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैसेज भेजा जा रहा है। बाय द वे जो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी होगी वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर होगी, वो इस डायग्राम में ड्रॉन तो नहीं है, बहरहाल मैसेज है वो सेंसरी न्यूरॉन के अलॉन्ग भेजा गया टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पेसिफिकली टू द स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से अल्टीमेटली इंटरन्यूरॉन के जरिए जो मैसेज है वो भेजा गया टू द मोटर न्यूरॉन, राइट, और मोटर न्यूरॉन से जो रिस्पेक्टिव इफेक्टर्स हैं उनको मैसेज भेजा गया। सो ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल पुल योर हैंड बैक, राइट। सो एक तरह से ये वाला जो पाथवे है, अब कहते हैं कि ये 3 न्यूरोनल पाथवे है, ये 3 न्यूरोनल पाथवे है। और सो ये जो एक्शन है बेसिकली इसको हम एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और ये जो पाथवे इसके अंदर इन्वॉल्व है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। All right, so this is about the reflex action and the reflex arc. So that's all about the different elements of the nervous system. I hope that you have enjoyed the discussion with the different elements of nervous system. We'll see you again with another subsection very soon. Thank you very much. जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल क्या है, सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें। उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं।
कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.bk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपिका का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, रियल नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में, या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें 1-2 वीडियो रिव्यूज हैं। डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट, स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे, एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली हैं। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं।
सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.pk। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।